मोअज़्ज़ज़ अरकीन, जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظीम। सूरह अल-माइदा की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातिर हक़ पर कायम हो जाओ, रास्ती और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफ अदल पर आमादा न कर दे। अदल किया करो जो परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अल्लाह ताला का वादा है कि जो ईमान लाएं और नेक काम करें उनके लिए वसी मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर व सवाब है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जरीर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युहरमिर रिफ़्क़ युहरमिल खैर कुल्लहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स नरमी से महरूम है वो तमाम भलाइयों से महरूम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफ़ा जिधर जिधर गए, मुस्तफ़ा जिधर जिधर गए। जिब्राईल भी है दम बखुद, जिब्राईल भी है दम बखुद,
मुस्तफ़ा किधर किधर गए, मुस्तफ़ा किधर किधर गए। कितने दिले नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए, रास्ते निखर निखर गए। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Leave applications. Ali Asghar Khan is requested for grant of leave for 17th and 18th October. Is leave granted? Granted. Hamid Hussain is requested for grant of leave for 17th October. Is leave granted? Granted. Mujahid Ali is requested for grant of leave from 17th to 21st October. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmed Chaudhary is requested for grant of leave from 17th to 22nd October. Is leave granted? Granted. Muhammad Aslam Guman is requested for grant of leave from 18th to 21st October. Is leave granted? Granted. Makhdoom Tahir Rasheeduddin is requested for grant of leave from 22nd October till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Muhammad On Saklan is requested for grant of leave for 22nd and 23rd October. Is leave granted? Granted. Nazir Ahmed Bagyu is requested for grant of leave from 22nd to 24th October. Is leave granted? Granted. Mir Amir Ali Khan Maksi is requested for grant of leave from 22nd to 24th October. Is leave granted? Granted. Wasim Qadir has requested for grant of leave from 22nd to 24th October. Is leave granted? Granted. Jamshed Ahmed has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Sayyid Hussain Tariq has requested for grant of leave from 18th to 22nd and 22nd to 25th October. Is leave granted? Granted. Pir Aftab Hussain Shah Jilani has requested for grant of leave from 22nd to 25th October. Is leave granted? Granted. Sayyid Ibrar Ali Shah has requested for grant of leave from 22nd to 25th October. Is leave granted? Granted. Muhammad Afzal has requested for grant of leave from 22nd to 25th October. Is leave granted? Granted. Rafiq Ahmed Jamali has requested a grant of leave from 22nd to 25th October. Is leave granted? Granted. Mehtab Akbar Rashdi has requested a grant of leave from 22nd to 25th October. Leave granted? Granted. Sayyid Imran Ahmed Shah has requested to grant of leave from 31st October to 6th November. Is leave granted? Granted. जी calling attention जी उमर अयूब साहब बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर मैं 1-2 मिनट सिर्फ लूँगा कॉलिंग अटेंशन से पहले। जनाब स्पीकर यहाँ पे आपकी मैं तवज्जो इस बात पे लाना चाह रहा हूँ कि ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेंबर से आपके सेक्रेटेरिएट में अभी दूसरा सेशन जा रहा है,
मैंने जी क्वेश्चन काइंडली ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी जनाब स्पीकर, ये दूसरा सेशन जा रहा है। मैंने जमा कराए थे, मेरे सेक्रेटेरिएट ने जमा कराया था। आपके सेक्रेटेरिएट में क्वेश्चंस बजाते खुद मैंने जमा कराए थे। कौन से क्वेश्चन? सर मैंने 3-4 क्वेश्चंस मैंने जमा कराए थे आपके सेक्रेटेरिएट में। दूसरा सेशन जा रहा है और साथ कॉलिंग अटेंशन नोटिस था। दूसरा सेशन जा रहा है सर, वो तो 1 या 2 दिन में होना चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आया। मैं जो है ना क्वेश्चंस का, वो तो बैलेटिंग होती है, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। दे शुड बी इन द बैलेटिंग। जो कॉल अटेंशन है ये चूँकि पुराना कुछ दिनों से चलते आ रहे हैं, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। आगे से हम एक इधर ही देते हैं, जितना पुराना है एक इधर और एक इधर देते हैं। ठीक है सर, सिर्फ गुजारिश ये कि अननेसेसरीली मैं कभी किसी को नहीं बॉदर करता। जो टाइम बाउंड चीजें होती हैं वो ही हम लोग देते हैं। जी विल डू दैट। नंबर 2। नंबर 3 चीज जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं इस चीज पे लाना चाह रहा हूं, एंड आई एम श्योर इसका आपको भी इल्म नहीं होगा। जनाब स्पीकर, आप अपने सार्जेंट एट आर्म साहब की ड्यूटी लगाएं या बाकी लोगों की ड्यूटी लगाएं और अपनी सीसीटीवी कैमरा जरा चेक कराएं। जिस दिन ये 26th अमेंडमेंट यहां पे पास हो रहा था उस दिन और इससे एक दिन पहले जी जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पर्सनल आपके नेशनल असेंबली सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में यहां पे आए हुए थे। नहीं, और सर मैं आपको बता रहा हूं सर, आप मेरी गुजारिश सुने, मैं कभी भी अनफाउंडेड बात नहीं करूंगा, या गलत हुआ तो उसको आप सीसीटीवी कैमरास एक्सेट्रा से प्रूव करें। पर यहां पे आप सार्जेंट एट आर्म साहब और इंडिपेंडेंट लोगों की सर एक कमेटी बनाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके गेट नंबर 5 जो आपका आता है, जहां से गाड़ियां आती हैं, वहां पे वीगो डाले बकायदा नेशनल असेंबली प्रीसेंट्स के अंदर वो लोग आए हैं और वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी के जो उनको जो भी ड्यूटी मिली हुई थी, जो हमारे यहाँ पे यरगमाल मेंबर्स थे, उनके जो 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो वहां पे बिठाए थे। और आपसे गिला भी मैं करूंगा, मैं उठ के मैंने बात की थी कि आप वो वोटिंग प्रोसीजर्स क्यों वायलेट कर रहे हैं कि उनको बिठा के बिल्कुल विजिटर्स गैलरी के नीचे बिठाया, अपना प्रेस गैलरी के नीचे बिठाया था, कोई वहां पे उनको देखे ना, चुप करके, रात का अंधेरा ही था उस वक्त, पर यहाँ पे तो सारों को नजर आ रहे थे, उनको वोटिंग कराई थी। जनाब स्पीकर, ये रवायात गलत है। हमारे लोगों को गन पॉइंट पे और जो जुल्म सितम हुआ है, जिस तरह उनसे वोट ली गई है और बाकी लोगों को भी यहाँ पे चेंबर्स के अंदर रखा गया है, इस असेंबली के प्रीसेंट्स के अंदर रखा गया था हमारे लोगों को। आपके मेंगल साहब के 2 सेनेटर्स को जिस तरह लाया गया था, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, जनाब स्पीकर आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। ये गलत रवायात है और यहाँ पे ये इंट्रूजन इंटेलिजेंस एजेंसीज की और दूसरी फोर्सेस की, ये इस हाउस को, डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान की फेडरेशन को ये फर्दर डिरेल और कमजोर करेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। उमर साहब, मीडिया के हमारे कोलीग्स बैठे हुए हैं। कल पैक जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, ये भी पैक्ट था, वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे। मेंबर अब दावर साहब जाके बार बार इधर बैठ जाते हैं, आई कैन नॉट स्टॉप हिम कि वो कहाँ बैठें, तो इसलिए मेंबर को मैं नहीं रोक सकता कि कहाँ बैठें। तीसरी चीज़ ये है कि आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूँगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊँगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे, तो इंशाल्लाह। जी उमर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। उन लोगों को वहाँ से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था, आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। और यहाँ पे ऊपर मीडिया के लोग उनको देख भी नहीं सकते थे, उनको चुप करके वोट करा के निकाला गया था। और दूसरा स्कफल भी हुआ था जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों का, अननोन का और मीडिया का पर्सनल। वो वीडियो क्लिप मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी आपको मैं पर्सनली भेजूंगा कि आप इसका नोटिस लें जनाब स्पीकर। मैं अता साहब आपको देने से पहले मैं एक कमेंट ज़रूर करूँगा। देखें, इन हमारे पुलिस के जो मीडिया वाले हैं, इनकी नज़र से कोई नहीं छुप सकता। ये हम चाहे दीवार भी खड़ी कर दें, ये उसके आगे भी, दीवार के पीछे भी देख सकेंगे, तो ये मुझे यकीन। जी अता साहब का सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम इस हाउस ने पास की सर, उसके तमाम तर लीगल प्रोसेसेस भी पूरे किए गए। जो पॉलिटिकल कंसेंसस था सर, ये कोई उजरत में नहीं किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को सर 2 से 2.5 माह लगे। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब की ये डिमांड थी कि इसको SCO के बाद किया जाए, और सर इसको ये तातुल का शिकार भी रही। और सर देखिए, यहाँ पे जो बैठे मेंबरान हैं,
जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। और बाय एंड लार्ज सर ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनपुट को शामिल किया गया और 2 शिक्कें खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई, जिसके बाद ये कंसेंसस को कहा गया कि 90% जो है वो कंसेंसस अचीव हो। यहाँ पे जो हुआ सर लीगल प्रोसेस ये कहता है कि जो किसी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर है उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी और पार्लिमानी लीडर उनको बताएगा कि उन्होंने कहाँ वोट करना है। तो ना तो सर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई क्योंकि वो आज़ाद अरकान थे, ना उनको डायरेक्शन गई और ना कानूनी तौर पे उनको नोटिस गया क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से बैठे थे। सर वो चारों के चारों आइडेंटिफाइबल लोग थे। या मीडिया में सर 4-5 हमारे लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी वीडियो बनी। तो सर देखिए, अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और ख़ुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा, क्या वो छुप के बैठे थे, क्या वो लॉबीज़ में मौजूद थे, वो आके सीटों पर विराजमान थे, उन्होंने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया है। तो सर इसके अंदर इसको कंट्रोवर्शियल करना और कहना कि जी असेंबली के जो बावर्दी लोग हैं वो उनको लेके आए थे। सर मैं उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। तो मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो सीजेपी की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। यहाँ पे बैठे लोग जो नेगोशिएशन में शामिल थे, इन्होंने अपनी मर्जी से ये नेगोशिएशन में शरीक हुए हैं और ना सिर्फ शरीक हुए हैं, इन्होंने एक एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तफाक भी किया। अगर उसके बाद ये कहें कि इनका मुसवदे पर इत्तफाक नहीं था तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा, अपने लोगों को ब्रीफ नहीं किया। आज भी जो तलखी हुई है, आज जो तलबी की गई है गौहर साहब की, सलमान अकरम राजा साहब मेरे उस्ताद हैं लॉ के, उनकी जो तलबी की गई, उन्हें कहा गया है कि आपने किससे पूछ के ये नाम दिए थे। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं, स्पीकर के सर पे क्यों डालते हैं। अगर आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है कि आपने इस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनना था और आईनी मसवदे पे बात नहीं करनी थी, आप ना करते। आप लोग क्यों मौलाना फजल रहमान के पास बार बार जा रहे थे? आप कहते हम बात नहीं करते। और अगर आपको इतराज था तो पार्लियामानी कमेटी के नाम भी अपनी मर्जी से दिए हैं, उसमें शरीक ना होना इनकी मर्जी है। मगर आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबरान ने आज़ाद हैसियत से वोट दिया है और सबके सामने आके दिया है, तो फिर इनको चाहिए कि अपनी जमात की इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी जमात के हवाले से मामला ठीक करें। ये आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, कॉलिंग जी उमर साहब दीजिए, उमर अयूब साहब दें। जो हमारे यहाँ पे खड़े थे, जितने स्पीकर बाहर के बंद थे, यहाँ जो खड़े हुए थे या अंदर जितने सिक्योरिटी वाले थे, ये वही सिक्योरिटी वाले हैं जो हमेशा। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको एविडेंस देता हूँ जी। ये आपके ये देखने सारे लोग, प्रेस में भी ये मैं अभी ट्वीट भी कर दूंगा। ये जनाब स्पीकर आपके नेशनल असेंबली के वर्दी में लोग, ये आप काइंडली चेक करा लीजिएगा अपने सार्जेंट एट आर्म से कि ये साहिबान कौन थे। ठीक ये आपके नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट के यूनिफॉर्म में, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में ये लोग। ये मैं अभी फोटोग्राफ लेके आपको ये दे देता हूँ, ये देख लें। ये आप सारे के सारे थोड़ा आप सारी देख लें, ये देख लें। मैं अभी देता हूँ सर, ये भी देता हूँ। और जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा, मैं ये आपको अभी जमा कराता हूं बैरिस्टर गौर साहब, या 2 मिनट बाद। नहीं, वो गुजारिश मैं खुद सुन लूंगा डायरेक्ट उनसे। जी, वो आपसे करना पहले हम थोड़ा सा बिजनेस लेंगे, उसके बाद प्राइवेट मेंबर दे सब बात करें। तो हम ये पहले कॉल अटेंशन डेफर कर रहे हैं, इसलिए कि फिर से रिक्वेस्ट आई है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, रफ़ीउल्लाह साहब टू मूव आइटम नंबर 3।
थैंक यू जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सर मैं तहरीक पेश कर आइटम नंबर 3 रफ़ीउल्लाह साहब मूव कीजिए। सर मैं वही पढ़ रहा हूँ जी। सर मैं तहरीक पेश करूँगा कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल एक्ट 1973 में मज़ीद तरमीम करने का बिल पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में तरमीमी बिल 2024 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी, इसका कुछ सेलिएंट फीचर्स बताइए। सर मैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी रफ़ीउल्लाह साहब, इसके सेलिएंट फीचर्स बताइएगा ज़रा। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर मैं थोड़ा सा जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज़। जनाब स्पीकर ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें प्लीज़। जी, तमाम शोबे और तमाम लोगों की अपनी जगह पर रिस्पेक्ट मौजूद है। मैंने सर इसमें जो मकसद है मेरा वो ये है कि जो हमारी बहनें या हमारी जो नर्सिंग स्टाफ है वो ये बेहतर समझते हैं कि किस तरह इंजेक्शन लगाना है, कैसे दवाइयाँ देनी है, मेडिसिन किस तरह पिलानी है, किस तरह खिलानी, लेकिन एक इदारा नहीं चला सकती। एक इदारे चलाने के लिए प्रॉपर कुछ ऐसे लोग हों जो इस इदारे को बेहतर अंदाज में चला सके। जनाब स्पीकर, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि वैसे भी इस इदारे के बारे में आप थोड़ा सा मालूमात भी ले लें।